आपको एक सिनारियो दे दूं? सर मैं करना चाहूंगी। ओके, तो ये पहली जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं वो आपको दे दूं। This task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patients and relatives, applied clinical knowledge. अब मैं सिनारियो आपको देने लगा हूँ। Mrs. XYZ, 33 years of age, Gravida 5, Para 1 plus 3, previous month C-section, presents to the antenatal OPD at 8 weeks of gestation. She's a known case of diabetes for the last 2 years, taking oral medication. She has got a scan done at a local clinic and some labs were done. She's taking tablet folic acid and has been experiencing mild complaints of nausea and vomiting. You're gonna have 10 minutes, which you should take relevant clinical history. Number 2, counsel the patient about the implication of her diabetes in pregnancy, outline the management of her pregnancy plan, and answer any questions that she may ask. Yes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आनू है। आपका क्या नाम है? Yusra. यूसरा, जैसे मुझे पता चला है कि आपकी ये 5वां हमल है और आपका इससे पहले एक बच्चा है और 3 गायब हुए और पहले आपका एक ऑपरेशन भी हुआ है और अभी आपका 8वां हफ्ता चल रहा है। क्या ये बात सही है? Yes, I think it's fine. अच्छा यूसरा, आपको 2 सालों से शुगर है और आप जो है वो गोलियां खा रही है। तो क्या आप मुझे बता सकती है कि जो आपकी गोलियां खाती है शुगर की, तो इसके साथ आप कौन-कौन सी गोलियां लेती है और ये कितने वक्त से आप ले रही हैं? Sorry, I can't understand you. आपने क्या पूछा? What did you ask? यूसरा, मुझे जैसे कि आप 2 साल से आपको शुगर है, ठीक है? तो आप जो है ये गोलियां खाती है ना उसके लिए, तो आप मुझे बताएं आप कितनी गोलियां लेती है और दिन में कितनी बार लेती है और कौन-कौन सी गोलियां लेती हैं? Doctor Sahab, I can't understand Urdu. Okay, sir. Sorry, sir. I thought I have to just talk in Urdu. Okay, we'll start again. Sir, I should, which language should I use, Urdu or English? I don't know. ये तो आपने करना बेटा. Sir, How do we I do think so. that? Urdu. आपका I टाइम think चल so. रहा है बस. यूसरा, आप कौन सी जुबान बोलती है? हेलो? एक सेकंड, सॉरी. जी. यूसरा, आप कौन सी जुबान बोलती है? उर्दू समझती है और do you talk in English? I don't understand Urdu. Okay. Yusra, as this is your 5th pregnancy and previously you had 1 alive baby and you had 3 miscarriages and you also have 1 previous C-section and this is your 8 weeks of this pregnancy. Is this information right? Yes. Okay, you're diabetic as well for 2 years. So can you tell me what's your age? 35, sorry. 35, okay. And can you tell me that you have 3 previous pregnancy losses? So were they like of which gestation you lost these babies at? They were all at Like 3 before, months. all at 3 months. So did you have a scan for that? Like, was there fetal heart? What the doctor told you that there is fetal heart activity present or not? No, in all of 3, then there was no fetal heart. It was a Okay. kind of a mistake. Okay. And then you had 1 C-section as well. So can you just tell me that when you had that 1 C-section 2 years back? It was done about 5 years back. Okay. Okay. And then after that, you were diagnosed with diabetes, right? Yes. Okay. So can you tell me that you use oral medications? So which kind of oral medications do you use in pregnancy? It's a glucophage 500 milligram. Okay, only this.
Are you using something else as well? No, I'm just using this for the time being. So do you check your blood sugar at home or from any nearby lab? It Is varies. it in control? No, it varies. It varies. Okay. So can you just tell me that do you have any other problem with this? Your raised sugar level, Like what? like frequent urination or some kind of infection? Like I'm being told that you also experience nausea and vomiting. So apart Yes, from the that, some other symptoms. nausea and vomiting is there since I found out I'm pregnant. Okay. Are you using something for that? Not yet. Okay. Do you have any previous consultation with the doctor for your management of, preconceptional counseling we just give in diabetes This is the and then first time I've come in. okay, Doctor, so this is you the don't first time you I've did come in. okay, so you didn't have any kind of like a test like which we call HbA1c or nothing like that. You have just like No, I your got that diabetes. done and I got my HbA1c done and it was 8.5. Okay, and when you did it before pregnancy? No, we had it about a couple of days back. Oh, okay. Can you just tell me that are you taking folic acid, Loprine? I Do you was know just these prescribed. tablets? Okay, and are Yes, I you know. taking them regularly? Okay, that's I've good. been just Can you just prescribed about. I've been just prescribed okay, about a couple of days back, so I've started that. okay, Yusra, that's good. Yusra, can you just tell me that do you have when you were having your previous baby? So did you was your baby macroscomic like bigger in size, or did you had more water It in was your an belly? average weight. Average weight, and was your belly having more water, or you have any kind of symptoms like frequent urination or polydipsia, polyuria, like No, you were urinating more, or okay, okay, that's good. Okay, tell me that do you have a family history of diabetes, like your father is diabetic or anyone at your home? my father is a diabetic. He is a diabetic. Okay, can you just tell me that do you have any symptoms like when you're not pregnant, so like do you have any kind of cyst in your ovary? What was there any ultrasound done for that, like you're having prolonged cycles? No, I don't think so. I had any issue. Like I never had ultrasound done. Okay, that's good. Okay, Usra, you're just coming here to us at 8 weeks, so I want to just tell you that I'm going to this pregnancy which you're having now, it's actually you're having a diabetes in this pregnancy. As you told me that your HbA1c is 8.5. So this 8.5 HbA1c, that shows that you are diabetic. So we are going to manage your pregnancy. I know I've been a diabetic for the last 2 years. Yes, you are diabetic for last 2 years. So that is chronic diabetes, but you still have diabetes in your pregnancy. So they have certain implications on your pregnancy. You might come with low birth weight of the baby, or you can just experience preeclampsia in this pregnancy. That is actually when we have raised blood level of sorry, we have raised blood pressure, and you might experience with polyhydramnios. There are different implications of this pregnancy. So therefore, I would like to start you on Loprane. We are going to take, as I told you, that I'm going to manage your pregnancy in a different way. From that, first of all, I will just like to counsel you about and educate you about that sugar level. I will do your investigations, okay? And we will see that your sugar level is controlled or not. As your HbA1c is 8.5, that is not a good number. I want it around to be like 6 to 6.5. So therefore, I'm going to just admit you first with myself, and I'm going to, first of all, I'll just carry out, your IBS, and then according to that, we're going to manage your sugar level, and I'm going to optimize them. Okay, are you getting me? How are you going to do that? Okay, I'm going to just admit you with myself in my ward, and then I'm going to send your 6 hours sugar levels, and according to that, I'm going to just see that first. I will just add medicines. I First of all, I I want to can't tell get you it. that if I can't see get it Yusra, ready. My baby boy Yusra, is Yusra, at home. okay, Yusra, can you hear me?
Yes, Hello? I can. See, Yes. that's how, in your case, I want to manage you by, first of all, I will just tell you that, if you change your lifestyle, your problem will be changed. But as your HbA1c is very, very high, it's 8 to 8.5. So I will send you a few investigations from your blood. That is like RBS, we call it random blood sugar. And according to, the level of your random blood sugar, I'm going to optimize it. But with your exercise, you're They going to did do my blood exercise. sugar and it was around. They did my blood Yeah. sugar and it was around 130 random. Okay, so this is not a good figure. Okay, random. Okay, random. Okay, that's fine. It's not that much, but I want to just tell you that now. Okay, I will not admit you. You can just be. You can just come after 1 week. We'll just do your these investigations again. But you have to. I will just consult you regarding your exercise and we have medical nutrition therapy. I'm going to optimize. I'm going to give you a diet chart. You have to lower your fat content. You're going to just use low glycemic index carbohydrates, and you're going to use more proteins. So that's how you're going to just manage your diet as well. You're going to just include at least 30 minutes of exercise in your daily routine, and then I'm going to increase your that metformin dose. Okay, the tablet you're taking is very low dose. Okay, so and I want to just as I told you that I'm going to manage your pregnancy. You're going to come at 12 weeks. I'm going to do your anomaly, your dating scan. You're going to see that the baby have no problem. The baby is viable, and we are going to just see that there's no. We are going to rule out any anomaly like in the head. Do you get me? अच्छा, time खत्म हो गया. It's Yes, been sir. 10 minutes. चलो, चलो, good. How do you think you performed? Sir, I couldn't just manage the time. Like I didn't knew that how much time has passed, and there was no time. We know that there is only going to be 10 minutes for this discussion. इसमें तो, Yeah, but I was not looking at the time. so then who should look at the time? Yeah, who Yes, should sir, plan I the time? should. Yeah, I should get a watch. Yes. You should need to get a watch. Chalo, that's a good thing. And what was the task? So the task was to consult the patient regarding the implications of diabetes in pregnancy, and then out loud how I'm going to just manage a pregnancy. How many tasks were there, beta? There were three. First was history. Second was counseling regarding diabetes in pregnancy, and the third was that management. Okay. So how many did we cover? I was in second one. You were in second. That means if we are only gonna 3 or 4 tasks में से अगर आप सिर्फ half करोगे तो फिर तो you will get the number out of how many? So out of 10. 10 में से आपको नंबर कितने मिलेंगे? So 4, 5. बेटा 4, 5 तो तब मिलेंगे कि अगर आपके उन दोनों जो आपने टास्क आदि जो कंप्लीट की है वो कंप्लीट हो. Yes, sir. You will be allotted number, not out of 10, you will be allotting, the examiner will be giving you number out of 5. Yes, sir. अगर आप पेपर एक अटेम्प्ट करते हो और लेट्स सपोज के उसके 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट्स हैं और उसमें से सिर्फ आप 2 पार्ट्स कवर करके आते हो तो आपका जो मार्किंग होगी वो 10 में से तो नहीं होगी, वो तो 5 में से होगी. 5 में से yes you can get 1, you can get 5, you can get 4, you can get 3, but definitely उससे आप 6, 7 तक तो नहीं जा सकते. You understand what I am coming to add? Yeah. और जब आप काउंसलिंग के लिए कैसे, why do you keep it in your mind कि you have to do it in Urdu? आपने क्या उससे पूछा कि आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कहाँ से आप आए हो, या आप उसका एजुकेशन कितनी है? पेशेंट माइट बी कमिंग इन कि जी कि मैं तो इंग्लैंड से आई. Why do you Yes, sir. plan कि it has to be in Urdu?
देयर इज अ गुड चांस कि जी नेक्स्ट टाइम जो स्टेशन बना दें बीच में कोई, तो दे कैन डू इट इन द लोकल लैंग्वेज, दे कैन डू इट इन एनी लैंग्वेज दे वांट। यस सर। वो तो हमने असेस करना है ना बाद में आके। फिर आप मुझसे पूछ रहे हो कि जी कि मैं किस में उसको काउंसिल करूँ। ऑफ कोर्स हमारी बेसिक लैंग्वेज तो यस वुड बी प्रॉब्ली उर्दू, और जो जो हमारे लेट्स सपोज लोकल एरियाज में से, लेट्स सपोज जो केपीके में से, देयर इज अ गुड चांस कि वो क्या है कि पश्तो में कर दें। जो पंजाब से हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे कैन आस्क यू कि जी हमारी पंजाबी में हो, सिंधी में हो सकती है, या कोई बाहर से बंदा पेशेंट आया हुआ है जो फॉरेनर है, उसकी इट हैज टू बी इंग्लिश, या हो सकता है वो सारी उम्र इंग्लैंड में रहा हो, अभी छुट्टियों पे ही आया हो तो उसे प्रॉब्लम होगी। सो यू नीड टू बी गेयर्ड अप इन ऑल द लैंग्वेजेस। और यही टॉक्स का जो है ना एक ब्यूटी इसमें ऐड ऑन होगी है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट थे जो पहले आप असेस नहीं कर सकते थे। नाउ इट कैन बी डन इजीली। अब इसी में जो हमारी सपोज जो थी, उसमें हमने शुरू में कहा था द असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल स्किल। इसमें पेशेंट सेफ्टी आ गई थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग आ गई थी, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स है, और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है। अब इन सब में से जी जो आई थिंक while doing communication, आप इतनी जल्दी और इतना बोल रहे थे कि आप मौका ही नहीं दे रहे थे अगले उसको क्या कहते हैं, रोल प्लेयर को, या इवन एग्जामिनर अगर होगा उसको, टू रिएक्ट या आंसर या यू वर काइंड ऑफ डूइंग इट वेरी वेरी हर्रिडली। थोड़ा सा जो भी आपने पेशेंट को इंफॉर्मेशन देनी है उसको सिंक इन करके उसको अगले को रिस्पॉन्स तो आप देखो कि वो क्या देना चाहते हैं। मे बी वो उससे आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चल सकता है, वरना इट इज नॉट अबाउट कि जी आपने बुक में से 4 पॉइंट्स बता देंगे। क्योंकि बीच में से मैं तो बोलने की 2 दफा कोशिश की, लेकिन वो आपकी स्पीड इतनी तेज थी कि आई कुड नॉट इवन स्टॉप यू। या आपने इसमें से मतलब है कि मुझे टाइम ही नहीं दिया, वो हम क्या करेंगे। और दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी? व्हाट डू यू थिंक वाज द इन्फॉर्मेशन? So her HbA1c was so raised. हाँ, हायर HbA1c, नॉन डायबिटिक है फॉर द 2 years, और उसके बाद उसको आगे लेके चलें। अब एक पेशेंट जो आपका नॉन अपना डायबिटिक है और अब वो प्रेग्नेंट हो गया है और उसकी HbA1c 8 पॉइंट समथिंग आ गई है, उसकी इवैल्यूएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम अ नॉर्मल रूटीन। इसके अंदर जो आपके स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं उसकी आपने जरूर जिक्र करना, जिसमें आपका इसका क्रेटिनिन लेवल है, जिसमें आपका इसमें अगर तो वी डोंट हो कि अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें उसका TSH करना जरूरी है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। उसके अलावा आप उसकी जो एग्जामिनेशन है उसमें उसकी आई का एग्जामिनेशन और ये सब चीजें आप इनिशियली डालोगे। इनिशियली ये नहीं कि आप उसे कहो कि जी कि ये आपका आ गया तो मैं आपको एडमिट करके भी सारा कुछ करूँगा। पहले उसकी सारे पहले वर्कअप होना चाहिए, एंड some of these things can be worked up on OPD basis, and some of them एक्चुअली जिसे हम प्रैक्टिकली भी करते रहे हैं। अगर हमें एडमिशन की जरूरत है, पेशेंट कहती है मैं तो आई ही कोई अबाउट 5 आवर्स 4 आवर्स ड्राइव से या दूर से आई हूँ, मैं दोबारा नहीं जा सकती, मतलब है कि फ्रिक्वेंटली नहीं आ सकती, फिर हम उसके हिसाब से उसको करेंगे। एंड उसी में ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कि आप कितनी दूर हॉस्पिटल से रहती हैं या कितना फ्रिक्वेंटली आ सकते हो, ट्रांसपोर्ट का, वो सारा कुछ करने के बाद देन वी विल डिसाइड कि हमने उसकी मैनेजमेंट प्लान क्या करना है। और उसमें जो चीज़ फ्लैग होगी है वो इसकी एज में, आपने खुद बताया कि जी हाँ जी आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट डाउन टू 6, लेकिन वो 6 खुद ब खुद तो नहीं होगी। 6 करने के लिए क्या क्या आपने बीच में थोड़ा सा कहा, डाइट का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा उसने आपने वो किया इंफॉर्मेशन के जी हो सकता है कि मुझे आपकी डोज बढ़ानी पड़े, आपने एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आगे इसकी वैल्यूएशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर HbA1c इतना हाई आता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या किस किस चीज़ में आ जाती हैं, उसकी एनॉमलीज के अंदर आ जाती हैं, परसेंटेज वो इंक्रीज कर जाती है, और उसकी वजह से फिर उसको किस तरह मैनेज करके आगे लेके जाएंगे, और उस एनॉमलीज के लिए कहाँ कहाँ हमारे अल्ट्रासाउंड होंगे, जहाँ कहाँ कहाँ से हम देख के इसको लेके चलेंगे, कितना फ्रिक्वेंटली हम चलेंगे, और इसको हम किस तरह फॉलो अप करके देखेंगे
क्या अगर उसको इंसुलिन की जरूरत है कि वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आपने पूछा नहीं सारी हिस्ट्री के अंदर, जो पिछली प्रेगनेंसी थी क्या उसमें डायबिटीज थी कि नहीं थी, क्या उस पर वो इंसुलिन यूज करती थी, क्या ओरल पे थी, क्या सिर्फ डाइट पे थी। और अब अगर हमें पता भी चल गया कि लास्ट 2 ईयर से वो डायबिटिक है, दिस इज लाइकली चांसेस कि जो पिछली प्रेगनेंसी 5 साल पहले हुई है उसकी, उसमें भी उसकी डायबिटीज का कुछ ना कुछ इशू निकला होगा। यस यू डिड आस्क पॉलीहाइड्रोमिया लास्ट प्रेगनेंसी में, यस यू डिड आस्क व्हिच वाज अ गुड पार्ट के जी की बेबी का वेट कितना था जो डिलीवरी, उसमें आपने फ्लाइंग करके सिर्फ गुजर गए, मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसका क्या जवाब दूंगा। आपने ये नहीं पूछा कि जो पहला सेक्शन जो है वो क्यों हुआ था, उसकी कोई इम्प्लीकेशंस हैं। यस सर। एंड देन फिर देन क्योंकि अब ये 10 मिनट के अंदर करना है, फिर देन यू हैव टू डिवाइड इट इनके जी कि हम इसका इनिशियली ये वर्कअप करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, और फिर आगे गोइंग अप टू द डिलीवरी प्लान अगर टाइम मिलेगा तो वहां तक हम चले जाएंगे। तो दोबारा री सेक्शन होना है कि नहीं होना, कि हमने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, व्हाट नॉट, एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज। इसमें जो आपने नॉर्मलीज को ज्यादा फोकस करना है, उसमें जो इसमें होती हैं डायबिटीज में कौन कौन सी होती हैं। सर कार्डिक, कार्डिक वो कब स्क्रीन करते हैं। न्यूट्रिफिक। ये सर हम सर वैसे तो हमें नॉर्मली स्कैन करते हैं 22 वीक्स पे, बट हाँ तो दैट अगर उसमें आप कोई बता दो प्रॉब्लम कि आता है तो हाँ yes, sir. ये बता दो कि जी कार्डिक नॉर्मली इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्कैनिंग जो है जिस तरह भी करनी है, चाहे आपने एको से करनी है, चाहे आपने ये ग्रे स्केल के ऊपर 4 चैम्बर व्यू करना है उसका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए, लेकिन वो अभी नहीं 8 वीक्स पे अभी तो हो नहीं सकती, तो इट विल फॉलोड अप एट दैट टाइम। उससे पहले आपका इसका एंटी का स्कैन वो कर सकते हो। न्यूरो ट्यूब के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर अगर हम डेटिंग स्कैन पे देखें एनएन कैप को हम रूल आउट कर अरे सकते हैं। बेटा एनएन क्या, कैप को हम सर एनएन कैप को तो हम रूल आउट कर सकते हैं डेटिंग एनएनकैफ स्कैन। अर्ली में हो जाता है, यस वो 12-13 वीक्स पे कई बार नजर आ जाता है एनएनकैफली। और ओपन यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कोई ब्लड टेस्ट है जो कर सकते हो आप। यस सर अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन यू कैन डू दैट, जो उससे रिलेट करके कर सकते हैं। तीसरा आपने जरूर बीच में आई थिंक आई हर्ड समथिंग कि जी की जो मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ऑफ कोर्स डायबिटीज का कंट्रोल होना ही होना है, उसके साथ फिर आप उसको लोप्रिन ऐड ऑन करते हो। व्हाई डू वी ऐड ऑन लोप्रिन टू सच पेशेंट्स, सर टू अवॉइड प्रीक्लेम्शिया। टू अवॉइड प्रीकैम, क्योंकि यही पेशेंट जो हैं दे आर prerequisites to developing hypertension या PIH in the pregnancy और उसकी implication, और फिर then follow up करके आगे जाके चलते। तो बेसिकली जो इसकी जो की के हिसाब से अपने जो फोकस करना था वो ठीक है। अब यू आर आस्किंग कि जी प्री प्रेगनेंसी कि आपकी कोई सिस्ट थी कि नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि डायबिटिक है 2 years में या प्रेग्नेंट हो गया आगे, व्हाट काइंड ऑफ सिस्ट वर यू लुकिंग फॉर वैसे, सर आई वाज रूलिंग आउट पीसीओस। उससे क्या फर्क पड़ता है। अब सर न्यू गाइडलाइन में ये कि पीसीओस आर लाइक अ रिस्क फैक्टर फिर और क्या करोगे आप, लेट्स सपोज का पीसीओ हो जाता है, अब तो प्रेग्नेंट होके आ गई 8 वीक्स पे, व्हाट डिफरेंस विल दैट मेक इन दिस मैनेजमेंट प्लान। यस सर। सर शायद वो जीडीएम में चेंज कर सकते हैं। क्या जीडीएम वो में, क्या जीडीएम। उसकी ऑलरेडी डायबिटिक, यस सर। वो तो ऑलरेडी बेटा डायबिटिक है। कोई आपने कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज करनी है, कोई आपने कुछ और चेंज करना है, वो किस तरह करोगे आप। सर हम पीसीओस में भी हाँ ओजीटीटी कराते हैं, बेटा मतलब इसको एनुअली। डज शी रिक्वायर टू यहाँ हैव एन भी कराते हैं। ओटीटी। नो सर, सर शी इज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट शी इज डायग्नोज्ड सो। ये तो डायग्नोज होगी, इसकी एचबीएमसी हमने आपको बता दी, वो होती तो फिर देन यू कम बैक टू दैट कि हम ये करेंगे। यस सो सर। यू नीड टू, इसीलिए the emphasis on everything is focused. You need to take a focus history. फोकस इस क्योंकि 10 मिनट के अंदर आप इतना ही कर सकते हो, 10 मिनट में इसे ज्यादा नहीं कर सकते आप, उसको माइंड रखते। और अगर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आपका 4 टास्क हैं या 3 टास्क हैं, तो दैट मीन्स कि 10 मिनट में से आपने ये तीनों को 1/3 1/3 1/3 टाइम देना। मे बी 2 को आप 3-3 मिनट दोगे और लास्ट वाली को आप 4 मिनट दोगे, ताकि आपका मैक्सिमम कवर हो जाए।
अननेसेसरली उसमें नहीं फंस जाओगे। यही इस एग्जाम को पास करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, टू ये मैनेजमेंट दीज 10 मिनट्स टाइम। और दूसरा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपको वो क्लिनिकल सिनारियो कोई भी देता है, इवन एग्जाम में भी जब देते हैं, दे गोना गिव यू 2 मिनट्स टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। मैंने क्लिनिकल सिनारियो सुनाया है और आपने वो फरारी कार की तरह इस तरह रेस फौरन लगा दी कि बगैर सोचे समझे कि पता नहीं जाना क्या या क्या हो गया। यू हैव टाइम, उस 2 मिनट के अंदर यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ कि जी मैंने इसको कौन सी फोकस पॉइंट लेने हैं, मैंने इसके कौन से इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें डालनी है, मेरी ये 3 टास्क हैं, उनको मैं किस तरह करके अपना उसको मैनेज करूंगा। यू डोंट जनरली स्टार्ट्स what you call that ekdam. Do you get my point? Yes, I get it. Sorry. So coming back, इसमें हमने what you need to do is कि जब आपको पहले 2 मिनट मिल जाएंगे, that is the most important 2 minutes time, और उस 2 मिनट्स के अंदर what you plan to do is कि जी हमने कौन कौन सी टास्क को किस तरह टैकल करना और कितना कितना मैंने टाइम इन्वेस्ट करना है। अब जो ये इंफॉर्मेशन गैदरी है उसमें आपको जब सवाल फोकस का आ जाता है तो फिर वो आप उसने आपकी जो जो आपको इसने रिस्क फैक्टर्स दिए हुए, चाहे आप अपने पेपर पर लिख लो कि जी डायबिटिक है, 2 साल से है, और अब वो आपके पास आ गई है 8 वीक्स के ऊपर, एक उसका उसमें बता दिया कि उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और कुछ उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। तो यू कैन ऑलवेज आस्क कि जी ऑन अल्ट्रासाउंड की जी क्या इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी थी, उसमें हार्ट बीट थी या नहीं थी, क्योंकि उसके पहले 3 मिसकैरेजेस हुई हैं। उसके अलावा जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ है उसकी क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। अगर वो पढ़ी लिखी है तो मे बी शी कैन टेल यू कि जी के हमने उसका क्या करना। तो वो सारा कुछ को ऑर्गेनाइज करने के बाद देन यू शुड बी एबल कि जी हाँ जी ये 10 मिनट के अंदर हम सारी चीजें पूरी कर देंगे। कि हमने उसको डाइट के बारे में बताना है, क्या उसको पॉसिबिलिटी ऑफ इंसुलिन के बारे में बताना है, क्या उसको इंसुलिन लगानी आती है कि नहीं आती, घर में चेक जो है जो मॉनिटरिंग करनी है वो किस तरह करनी है, कि हमने 3 लेवल्स करने हैं, हमने 6 लेवल्स करने हैं, कि हमने किस तरह करके उसको एक्सप्लेन करना है, हमने उसको क्या हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम्स बताने हैं कि नहीं बताने हैं, अगर हमें कुछ और चीज स्टार्ट करनी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स उसके हर किसी की अपनी अपनी वेटेज होगी। समझ आई कि नहीं आई बेटा? ये सर आ गई। आगे चलो, अब इसमें कोई और सवाल हो आपका? अच्छा बस सर बस फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 2 मिनट खत्म हो रहे एक टास्क के तो फिर हम एक लाइन फॉर एग्जाम्पल बता दें। मतलब सॉरी, मैं एक चीज को बहुत एक्सप्लेन कर रही थी लाइक कि मैं आपको एडमिट करूंगी ये करूंगी, मतलब अगर एक टास्क के 2 मिनट है मेरे पास तो मैं उसको 2 मिनट में क्या मैं आपको इस तरह मैनेज करूंगी, एक ही लाइन में बंदा फिर बता रहे, आप उसको एक्सप्लेन ना आप करें। देखो नहीं, ऑर्गेनाइज करके आपने उसमें पूरा करके आना है। अब यस उसका सर। एडमिशन उसका नहीं एडमिशन या जो है वो आपने एवेल्युएट करना है उसमें। ड्यूरिंग दिस टास्क यू नीड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इसमें आखिरी वाला कंपोनेंट क्या था? सर मॉनिटरिंग भी है आपके एंटीनेटल, हम किस तरह वो करेंगे फॉलो अप। नहीं, उसके अलावा एक और आखिरी चीज भी थी, सर यही थी ना कि अप्लाइड हम आपको। क्लिनिकल नॉलेज भी तो है ना बेटा। अब वो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, जिसमें एडमिशन करना है नहीं करना, किस तरह करना है, उसकी वैल्यूएशन, और फिर हम अगर उसका फॉलोअप ही कराना है तो फॉलोअप किस तरह होगा। यू गेट माई पॉइंट कि नहीं? यस सर। यस सर। उसमें फिर आपने उसके हिसाब से लेके ही हमने अपने चलना। Okay. अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे बताओ।
सर ये मुझे बता दे कि हम पेपर वहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब मुझे तो लोग कहते हैं कि नहीं यूज सॉरी, कर सकते हैं। सर कैन वी यूज पेपर शीट्स देयर, फॉर व्हाट? पेपर like for writing down the scenario or like to organize our everything? आई डोंट नो, मुझे क्योंकि आई वाज मैं लास्ट एग्जाम में यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, तो आई डिडंट गेट, लेकिन जो आई सपोज जो गए हैं इस एग्जाम में, वो दे कैन टेल यू कि जी कि उनको अलाउड था वहां से कोई अपना यूज करना पेपर पेन के नहीं। Yes, sir. पर अस्सलाम वालेकुम सर। जी उसमें अपना लिखने में तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन आई डोंट नो जो शुरू में वो इंस्ट्रक्शन आके जो देते हैं उसमें क्या अलाउड था नहीं। मेरा मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पेपर तो आपने अपने साथ लेके चलना है। तो अगर आप साथ ले जाओ और उसमें लिखने के 2 मिनट में ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को, तो अनलेस कैंटिल यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट ऑन दोज जो है आपका, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन सर का वो कह रहे थे पेपर। कि अगर आपने आप एग्जामिनर से मांग सकते हो। सॉरी बेटा, क्या? आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे। सर उन्होंने कहा है कि आप एग्जामिनर से पेपर मांग सकते हैं। आप एग्जामिनर से पेपर मौजूद है, पेपर लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यूज कर सकते हो तो जो पहला तो 2 मिनट है ही बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने उस पर कोई अपना टेम्पलेट बनाना है या कोई स्पेशल पॉइंट्स लिखने हैं कि जी मैं इन चीज़ों पे फोकस करके इनसे सवाल पूछूंगा और ये मेरे 3 टास्क हैं, उन तीनों के नीचे नीचे आप हेडिंग लिख दो कि टास्क 1 के अंदर जो भी वॉट एवर है उसके अंदर मैंने ये 4 चीज़ें पूछनी है, मैंने इसमें ये 5 चीज़ें पूछनी है, इसमें मैंने ये चीज़ें जाके, ताकि हम उसकी पूरी कर सकें। ऑफ कोर्स आप हर चीज़ नहीं लिख सकोगे, और वो जब आप जाओगे सेशन के ऊपर और आपके साथ या एग्जामिनर बोलेगा या आपके साथ वो बोलेगा अपना क्या कहते हैं रोल प्ले, उसके हिसाब से वो चीज़ें मॉडिफाई डेफिनेटली हो जाती हैं, लेकिन एक जो आपके ज़हन में गेम प्लान है उसको जरूर एक रोड मैप जरूर बना के जाओ। और उसमें जैसे अस्सलाम अगर वालेकुम सर। जैसे सॉरी बेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जी उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है और उसके कोई ब्लड टेस्ट भी हुए हैं, तो यू कैन गो एंड आस्क कि आपका कौन कौन से टेस्ट हुआ था, आपकी क्या क्या उसमें रिपोर्ट्स हैं, और उसी से फिर देन यू स्टार्ट आगे बिल्डअप करने शुरू। जी डॉक्टर साहब। सर मुझे ये पूछना था कि सर जैसे ये पेशेंट 8 वीक के साथ आई थी, तो जो अप्लाइड नॉलेज में हमें इसको टिल डिलीवरी तक लेकर जाना है प्लान में, बेटा जो टिल डिलीवरी 10 मिनट्स में बेसिकली डिलीवरी तक जाना मुश्किल है, लेकिन एज जितना आपने बेसिकली उसको जब एक मैनेजमेंट प्लान देना है, वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक अगर पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर पेशेंट खुद पूछे कि जी कि मेरा क्या सेक्शन ही होगा, उसका भी जवाब इस स्टेज पे तो मेरा ख्याल है ये होगा कि डिपेंडिंग ऑन के पिछली इंडिकेशन क्या थी, जाहिर है। उसके बाद अगला स्टेप इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट है कि जी वो हम विल डिसाइड एज मूव ऑन। अभी तो फिलहाल उसकी जो ज़्यादा क्वेरीज हैं वो इम्पोर्टेंट है कि जी पहले उसकी 3 मिसकैरेजेस हैं अभी, और अब वो पहला एक सेक्शन भी है, 3 मिसकैरेजेस भी, आप 8 वीक्स पे दोबारा आ गए। अगर 8 वीक्स में वही आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि जी उसकी मेरी हार्ट बीट ही नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी विद एन HbA1c 8.5 कि अब उसकी हार्ट बीट नहीं है, अब उसकी मैनेजमेंट प्लान, फिर ये पेशेंट आपको उसके मिसकैरेज की तरफ ले जाता सारा क्लिनिकल सिनारियो, उसके लिए भी यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि जी उसका हमने फॉरन क्या करना है, इवैक्यूएशन करनी है, मेडिकल टर्मिनेशन करनी है, कि हमने कुछ नहीं करना है, कि हमें सर्जिकल टर्मिनेशन करनी है। तो वो सब चीज़ें तो इसमें होंगी, तो उसके लिए यही सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना आपको ठीक है। और फिर जाहिर अगर ये मिसकैरेज वाला हम इसी को क्लिनिकल सिनेरियो में डाल देते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर अगली प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या टेस्ट होने हैं कि नहीं होने, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब होनी है, मिसकैरेजेस की चांसेस क्या हैं दोबारा होने के, ये सारी बातें प्रॉब्ली दैट कुड बी आल्सो अ स्टेशन जिस पे आप डिस्कस कर सकते हो। पर ये वाला जो बनाया था ये सर प्रॉब्ली अगर हम कार्डियक, सॉरी जी सर, नहीं, आप क्या कह रहे हो? सर अगर ये, सर मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर पेशेंट कह देती कि जो जिसकी प्रीवियस मिसकैरेजेस हैं उसमें कार्डियक एक्टिविटी थी, तो फिर सर हमें रिकरेंट मिसकैरेजेस को भी कवर करना होगा क्योंकि 1+3 थी। यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसको फिर आपने अपने टाइम के तहत करना है ना बेटा। जो जो हमारा
क्या कहते हैं, स्टेशन बना रहा है, जिन्होंने भी स्टेशन बनाना होगा या बनाएंगे, दे विल रियलाइज कि जी ये सब चीजें आपने 10 मिनट के अंदर पूरी करनी है। तो फिर वो रैंडमली उसमें फिर बहुत ज्यादा, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ पीसीओ इसको कवर करना चाहती हूँ, वो प्रॉब्ली इस डोमेन में आती नहीं। इसी में जो पूछना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, यू कैन आस्क द पेशेंट कि जी आपका बीएमआई कितना, वो दैट मेक्स अ डिफरेंस, जिसका हम बीच में प्रॉब्ली उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट में नंबर होंगे आपके, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि जी बीएमआई किस तरह है, फिर उसके बाद आगे करके देखें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसका तो ये नॉन डायबिटिक है, इसका इतना ज्यादा HbA1c रेज्ड है, तो इसमें हम इस पे नहीं बात करेंगे काउंसलिंग में कि इंसुलिन पे शिफ्ट करके उसकी मेथड ऑफ स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज, इस पे थोड़ा बात कर लें। बेटा उसमें आप परसेंटेज जरूर बता के जरूर कर सकते हो, यस ऑफ कोर्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। ये बातें जब आप बैठोगे रोल प्ले के सामने या एग्जामिनर के सामने तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही क्लियर होती जाएंगी। तो उसमें यू हैव टू आल्सो गिव टाइम कि अगले वाले को भी रिस्पॉन्ड करके देखने दो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जी सर्टेन टेस्ट और ये सारा कुछ हुआ, तो आप बैठ के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कि सारी हिस्ट्री सुनाने के बाद वो कहती हाँ जी यही है, तो फिर आप यू कैन स्टार्ट ऑफ विद कि जी कि आपकी जो क्या क्या टेस्ट हुए हैं वो बता दें कि जी टेस्ट हुए हैं, और उसके मुताबिक फिर देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन रादर देन यू स्टार्ट अगेन कि जी कि हम इस तरह करेंगे। तो ये क्लिनिकल सिनारियो 3-4 डिफरेंट, बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा तरीकों से भी जा सकता हो सकता है कि इसमें क्लिनिकल सिनारियो में सिर्फ वो पेशेंट बैठी हो जो इंसुलिन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहती हो कि कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मुझे सिखाओ और उसको आगे मैनेज कैसे कर सकते हैं। एक इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि मिसकैरेज का सारा कंपोनेंट आ सकता है, इसी के साथ हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तक लेके जा सकते हैं। इसी के साथ ये लेते हुए हो सकता है कि वो क्लिनिकल सिनारियो के अंदर कह दें कि जी कि अच्छा यही पेशेंट को डाल के जी ये टर्म पे आ गई है, आप बताएं इसकी लेबर की मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, या अगर सेक्शन करना है तो उससे पहले क्या करेंगे। तो जो मैं जो पॉइंट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, जो पहला 2 मिनट है वो मोस्ट क्रूशल, यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम टू ऑर्गेनाइज कि जी हाँ जी क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें हम आगे लेके जा सकते हैं और हमने आगे किस तरह लेके जाना। पर मोस्ट ऑफ द में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उसके इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया हो, ताकि आप उसी पे फोकस करके ही आगे चलें। जी नई बात समझ आई तो मुझे फिर दोबारा बता दो, पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या देयर इज स्टिल एनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, थोड़ा सा यही मेरे सिनेरियो जो ना आप थोड़ा सा खुद से जो ना वो एक्सप्लेन करके बता दें कि थोड़ी सी पॉइंट जो भी 5 मिनट्स रह गए ना, तो उसमें तरह की थोड़ी हिस्ट्री की फोकस हो जाए या थोड़ी इन्वेस्टिगेशन फोकस हो जाए। बाकी ये है कि मैनेजमेंट प्लान में सिर्फ जस्ट वही आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये तो आपने बताना है, ये तो आपने सोचना है, दिस इज दैट इज द पॉइंट। देखो हाउ शुड आई पुट दैट, ये तो यू हैव टू सिट डाउन विद एवरी क्लिनिकल सिनारियो जो आपके क्रॉस आता है कि इसके लिए हमने इसकी फोकस हिस्ट्री में क्या करना है, इसका फोकस एग्जामिनेशन में क्या करना है, या इसकी फोकस काउंसलिंग में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। यस एग्जैक्टली सर, पर ये मेरे पास सिग्नल नहीं थे ना, तो इसलिए वो मिस हो गया, तभी मैंने कहा कि आपसे थोड़ा और लेट ज्वाइन किया तो आपसे पूछ लूं। अगर लेट ज्वाइन किया है तो फिर ये बाकी जो हम सारे बैठे हुए जरा इन्हीं से सुन लो ताकि मुझे पता चले कि इनको कितनी समझ आई। सर ये बिल्कुल वही बता दें। तो ये है जो हमने जो हमारी क्या कहते कैंडिडेट थी वही मेरा ख्याल है कि शी कैन जनरली क्विकली एक्सप्लेन कि जी हमने क्या यस सर।
सर इस क्लास में ये समझ रही कि पहले तो जब आपको सिनेरियो दिया जाएगा तो 2 मिनट होंगे, तो आप जब वहाँ पे खड़े हो जाए तो पहले तो अपने जितने भी आपको क्वेश्चन आस्क्ड है उस सब पे अपनी टाइम डिवीजन करें और मतलब 2 मिनट लेके या 2 मिनट लेके आखिर में आप 4 लिख लें और जो आप क्वेश्चन रेलिवेंट है वो भी साथ में लिख लें ताकि आप हर चीज़ को टच करें और अपने विद इन दैट 2 मिनट जो आपने दिए या जो जितना भी आपने टाइम डिवीजन किया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन करें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, क्योंकि मार्क्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, हर क्वेश्चन के अपने मार्क्स होते हैं, अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो आपको उसमें से 0 मिल जाते हैं। पहले तो ये बात आई, तो 2 मिनट में तो पहले आपने ये डिवीजन करना है, फिर जब आप पेशेंट के पास बैठेंगे तो उनसे आप जो है जो आपके रिस्क फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एज वगैरह, उसके साथ आप उससे एजुकेशन स्टेटस, उसका लैंग्वेज ज़रूर पूछेंगे और ठीक है ताकि आपको जो है मीडियम पता चल जाए कि आप उसके साथ जो बात करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे और किस ज़ुबान में करेंगे। उसके बाद अब जो आपको जो भी सिनेरियो दिया होगा आप उसको रियल टाइम में जो है वो करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा बातें फ़िज़ूल नहीं पूछेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को एलॉबोरेट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ 2 मिनट में बात करनी है। अच्छा, ये जो इस केस में ये था कि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने एक तो आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया, ऊपर से मैंने उसको मैंने उससे लैंग्वेज का नहीं पूछा था, तो शी वाज़ इंग्लिश स्पीकिंग और मैं उर्दू में शुरू हो गई और तो ये एक मिस्टेक थी और तो जो नॉलेज है वो नॉलेज हम सबके पास साथ है, लेकिन जो तरीका है वो सही नहीं था। मुझे तो यही समझ आया कि इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज मतलब वो जो और स्टेशंस है उसके लिए मे बी रिक्वायर्ड हो, लेकिन ये जो रोल प्लेयर वाले पेशेंट है उसके लिए टू द पॉइंट बात करना, हर चीज़ को टच करना और पेशेंट की सुनना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ बोलो और पेशेंट को सुनने का मौका ना दो। तो ये सारी उसमें थे। और ऑफ कोर्स इसमें कम्युनिकेशन जो आपकी रोल प्लेयर में है उसकी वेटेज काफी ज्यादा है होती है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद द पेशेंट और हाउ उसको तसल्ली किस तरह आराम से आप देते हो और उसका एम्पैथी शो करना। कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे खुदा ना खास्ता आईयूडी हो गई या कोई मिसहैप हो गया, उसके लिए भी वो आपने सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों चीजें शो करने के लिए उसकी वेटेज भी होगी। उसमें भी डायरेक्टली आप इस अपना ट्रेन की तरह एकदम कर करके गुजर नहीं जाओगे कि जहाँ जी हमने सारी चीजें पूरी करनी। चलो, कोई और इसमें सवाल हो आपका? देन वी स्टार्ट, अदरवाइज if no one has Sir, can we discuss the insulin dosage and the method of giving the insulin to the patient with uncontrolled blood sugar levels in this patient? जरूर कर लो बेटा। क्या डिस्कस करना चाहते हो उसमें? सर वही जो हम इंसुलिन देते हैं जैसे 2/3 और 1/3 डोजेज करके एनपीएच एंड रेगुलर इंसुलिन कंबाइन करके, सर वो एसओजीपी की गाइडलाइंस में थोड़ा डिफरेंट है और सर आरसीजी की गाइडलाइंस में डिफरेंट है, तो सर हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे? देखो बेटा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना कि वो आपने फोकस ये रखना है कि जो हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है, जो फास्टिंग है वो शुड बी लेस देन 95, जो हमारा 1 आवर के बाद है वो बिटवीन 110 140 के हो, 2 आवर्स के बाद जो है वो लेस देन बिटवीन 100 एंड 120 हो। 3 ये वैल्यूज जो आ गई हैं एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि हमने अपनी जो पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल है इसी ग्लाइसेमिक कंट्रोल के अंदर 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 रखनी है। अब वो मैनेजमेंट करने के लिए क्या हमें ओरल चाहिए, क्या हमें सिर्फ पहले इनिशियली स्टार्ट विद द डाइट, ये सिर्फ डाइट के साथ ये मैनेज हो जाती है, या हमारी ये हमने इंसुलिन स्टार्ट करनी है या ओरल डाइग्लाइसेमिक करने हैं या कुछ और चीज़ हमने इसमें ऐड ऑन करनी है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वहाँ पे आप तरीकाकार इसको स्टार्ट करने का वो करने का एसओजीपी का कह भी देते हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो रॉन्ग, लेकिन फिर उसको फेमिलियराइज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कि कितनी 1/3 2/3 वो क्या करना है। नॉर्मली मेरा अपना अंदाजा है ये फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है
फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर का इतना इशू नहीं होता, वो तो आप कंट्रोल कर लेते हो। लेबर वाला जो है ना, उसको थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन आ जाती है कि जी हमने पंप चलाना है कि हमने क्या करना है, हमने आईवी देनी है कि हमने सब कॉर्ड देनी है, हमने रेगुलर इंसुलिन देनी है कि हमें लॉन्ग एक्टिंग देनी है। उस चीज़ को ज़रा सा एक बार रिवाइज करके वो ज़रूर देख लो आप, दैट रियली डज मेक अ डिफरेंस। और ये डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस हैं, और आप जो भी गाइडलाइंस इसमें बताओगे, चाहे वो एसओजीपी की हैं, चाहे वो नाइस की हैं, चाहे किसी और की हैं, उसके रेफरेंस के थ्रू आप उससे बता सकते हो, कह सकते हो कि जी अगर आपका स्पेशली अगर तो रोल प्लेयर है वो कहानी फर्क होती है, लेकिन अगर एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन है उसमें आप उसका रेफरेंस देके उसके हिसाब से बता दोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके नंबर काटेंगे। लेकिन जो एक आपकी काइंड ऑफ इजियर टू डू यहाँ पे कर रहे हो, तो एसओजीपी की गाइडलाइंस मेरा नहीं ख्याल कि कोई बनी है, आपको फॉलो करना तो इतना मुश्किल है क्योंकि वो आपके लोकल सिनेरियो में बनी है, उसमें फॉलो कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर यही एग्जाम जाके आप जाके दे रहे हो और आ रहे हो उधर क्या कहते हैं एमआरसीयूजी का देने जाओगे, तो फिर जाहिर है फिर वहाँ पे तो उनकी गाइडेंस फॉलो करना ज़्यादा, वहाँ पे फिर आप एसओजीपी, लेकिन लोकली करोगे तो आई थिंक एसओजीपी की डिपेंड करना या उसका रेफरेंस देना विल हैव अ मोर वेटेज देन समथिंग एल्स, या वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं, हो सकता है कि वो एसओजीपी की गाइडलाइन बना के ही उसमें से आपका ये टॉप पोजीशन बना और उसी में से इंफॉर्मेशन। नहीं समझ आई? जी जी सर, समझ आ गई। चलो चलो, अगर और क्वेश्चंस नहीं है कोई तो I think let's finish this class or then probably see you next week. Sir, then should I present on next week? मेरी रह गई है। बेटा वो आप उसको इमरान को कह देना ना, नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको कर देंगे, टॉपिक भी बता देंगे। और अगर आप इसी को डायबिटीज को ही कंटिन्यू करना चाहोगे तो आप बता दो, ताकि फिर हम इसका एक और नहीं सर, आई एम ओके विद एनी टॉपिक जो आप बता देंगे मैं उससे तो फिर आप ये इमरान को प्लीज बता देना पहले, तो जब भी पूछे तो हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर विल डू इट। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।